Okay, friends, once again, welcome back and very good afternoon to everybody. I hope you all are safe, your family members, your relative, your parents, your friends, all are safe. And you are enjoying this new era, this new way of learning. And you are enjoying physics as well. Friends, on the last lecture, I had completed the chapter number 4 with respect to the theory and numerical. And today is to turn to discuss the MCQ of this chapter. As you know, the MCQ plays a very much important role in all aspects. Whether you are in CBSE or in Gujarat board, in all the cases MCQ are very important because in the Gujarat board your 50% weightage will be of MCQ. And in the CBSE also, from the 70-80 marks paper, 25 questions are objective kind of questions. It may be MCQ, it may be a 1 marker question. So if you solve the MCQ and try to solve it yourself without any help, it will definitely help you to clear the concept of the chapter number 1. It will help you in the board examinations number 2, and number 3, it will also going to help you in the good set and different competitive examinations. It is a very important thing. So you must solve MCQ simultaneously after completion of the chapter. In all the chapter you must solve MCQ. I had already sent you MCQ with the two kind of PDF file. In one it is written as a textual MCQ, which is a past old textbook MCQ, and other is a self-learning MCQ, which you have to prepare, which is for the practice. Apart from that, within a 3 or 4 days, I am going to give you a spiral binding of material in which all the chapters MCQ will be given to you. तो सारे चैप्टर के MCQ आपको मैं यहाँ से मेरे ऑफिस से आपको कलेक्ट करना होगा 2-3 दिन के अंदर. तो आज मैं यहाँ पे ये जो टेक्सचुअल काइंड ऑफ MCQ जो मैंने दिया हुआ है, तो आई एम गोइंग टू सॉल्व द MCQ 1 by 1. And after that, if the time permits, then we'll come to your doubts from the self-learning MCQ. तो टेक्स्ट बुक के जो MCQ है वो सारे चैप्टर में हमारा यही मेथड है कि वो मैं यहाँ पे आपको कराता हूँ, और जो सेल्फ लर्निंग प्रैक्टिस के लिए MCQ जो दिए हुए है उसको आपको सॉल्व करना है और उसके डाउट में कराता हूँ, और ऐसा ही मेथड एवरी चैप्टर में रहेगा. From the next week, I will also arrange one extra lecture. सर वॉइस लैग થાય છે. अभी आवाज मेरी क्लियर आ रही है आपको? नो सर. अभी आ रहा है क्लियर? यस सर. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So from the next onward weeks, you will be having one extra session also, and we'll arrange the time at the end of this lecture. अब lecture के end तक हम उसके time भी set कर देंगे. So just let me start to solve your MCQ. So MCQ number 1. Just a moment, friends. एक आध मिनट ठहरो. पेन कहाँ पे चला गया? Just a minute. Just a minute. Okay, let's start from the first MCQ.
So the question is, a particle of a charge q and mass m moves on the circular path of a radius r in a plane inside and normal to the uniform magnetic field. The time taken by the particle to complete one revolution. फ्रेंड्स मुझे ये बताओ कि ये इसमें कोई मुझे आंसर दे पाएगा? कोई चार्ज है, वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ऑब्वियसली आपको पता है कि अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है तो वो दो चीज कर सकता है, या तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा या फिर वो आपको पता है कि हेलिकल मोशन करेगा। तो इन बोथ द केसेस जो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम इंटरवल होता है वो तो दोनों केस में सेम ही होता है। तो किसी को पता है व्हाट वाज दैट टाइम इंटरवल टू कंप्लीट वन रोटेशन, एंड दैट इज कॉल्ड द पीरियोडिक टाइम। ऑप्शन डी। या कौन बोला? ऑप्शन डी सर, रिश्वा। हाँ, सो रेश्वा गिव द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द। तो चाहे वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करे या चाहे वो हेलिकल मोशन करे, दोनों केस में उसका जो रिवॉल्यूशन का जो पीरियोडिक टाइम होता है, द पीरियोडिक टाइम इन बोथ द केसेस इज अ सेम, एंड दैट इज, इफ यू रिमेंबर, द पीरियोडिक टाइम इज 2 पाई m अपॉन QB। अगर आपको याद हो तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला वहां पे था QB बाई 2 पाई m। अगर आपको याद हो तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला था QB बाई m। और अगर आपको याद हो तो रेडियस का फॉर्मूला था mv अपॉन QB। एक्चुअली द स्टैंडर्ड फॉर्मूला वाज mv sin थीटा अपॉन QB। अगर वो परपेंडिकुलरली एंटर हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में तो वो mv अपॉन QB हो जाएगा। अगर वो परपेंडिकुलर नहीं है तो mv sin थीटा अपॉन QB, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ द रेडियस। ये फॉर्मूला सबके लिए वैलिड है। अगर परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 होगा तो ऑटोमेटिकली mv अपॉन QB आ जाएगा। बाकी के तीनों फॉर्मूला दोनों केस में वैलिड है। इन बोथ द केसेस वेदर सर्कुलर मोशन और हेलिकल मोशन, in both the cases these two formulas are the previous three formulas are valid। तो क्या ये बात आपको समझ में आया फ्रेंड्स? Yes, sir. Okay, now coming to the next question, question number 2. An electron performs the circular motion of the radius r perpendicular to the uniform magnetic field. What is the kinetic energy gained by the electron in half the revolution? देखो, आपको पता है कि मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो आपको पता होगा कि अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आता है तो उसका मैग्नेटिक फोर्स होता है QV क्रॉस B। मतलब ये जो फोर्स है ना वो वेलोसिटी से परपेंडिकुलर है। तो इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, दैट इज द स्पीड, रिमेन्स कांस्टेंट, ओनली डायरेक्शन कैन चेंज। स्पीड तो कांस्टेंट होता है बट डायरेक्शन चेंज हो सकता है। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहा है और सर्कुलर मोशन करता है तो उसके काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा, उसका स्पीड कांस्टेंट रहता है, उसका खाली डायरेक्शन ही चेंज होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा उसको कितना काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, हाउ मच द काइनेटिक एनर्जी गेन बाय द चार्ज ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड? तो वो कुछ गेन नहीं करेगा, वो जो है उसका काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहने वाला है। तो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय द चार्ज इन द हाफ द रिवॉल्यूशन? हाफ रिवॉल्यूशन में कितना गेन होगा उसको? 0. जीरो, कोई गेन नहीं होगा। जो है उसको वही का वही वो पेंडिंग, मतलब वही का वही वो कांस्टेंट रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ नहीं है कि वो काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करे। वो खाली क्या कर सकता है, वो खाली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करा सकता है या फिर हेलिकल मोशन करा सकता है। उसके पास इतनी ताकत नहीं होती मैग्नेटिक फील्ड के पास कि वो चार्ज के काइनेटिक एनर्जी को चेंज करे। वो खाली डायरेक्शन चेंज कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता है। क्या ये बात आपको समझ में आई? Is that clear, friends? Yes, sir. चलो, come to the question number 3. Question number 3 is, आपके मोबाइल में क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा है? Yes, sir. Okay. A particle of mass m and charge q is
a charge q, this particle is accelerated through a potential difference v, then entered normally in the uniform magnetic field. वापस से वही का वही टॉपिक है कि भाई कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहा है तो वो आने के बाद क्या करेगा फ्रेंड्स? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन करेगा। तो अब क्वेश्चन ऐसा है कि वी वांट्स टू डिराइव द स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब क्या हुआ कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है तो उसका चार्ज एंड उसका मास का जो रेशियो है उसको स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। तो मुझे यहाँ पे स्पेसिफिक चार्ज का फॉर्मूला डिराइव करना है। स्पेसिफिक चार्ज मतलब द रेशियो ऑफ द चार्ज टू द मास, चार्ज टू द मास, दिस रेशियो इज नोन एज अ स्पेसिफिक चार्ज। तो फ्रेंड्स अगर कोई Q चार्ज को हम पोटेंशियल V के द्वारा अगर हम इसको एक्सेलरेट करते हैं, कोई चार्ज को Q को अगर हम V पोटेंशियल से एक्सेलरेट करते हैं तो उसका काइनेटिक एनर्जी अचीव्ड बाय दैट पार्टिकल इज अ Q इनटू V। अगर कोई चार्ज को आप V वोल्टेज देते हो और वो एक्सेलरेट होता है तो उसका काइनेटिक एनर्जी होगा Q इनटू V। वैसे एक्चुअली आपको पता है कि चार्ज को अगर V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो Q उसका पोटेंशियल एनर्जी होगा, बट वो चार्ज जब मोशन में आएगा तो वही पोटेंशियल एनर्जी उसका काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब सिंपल सी चीज अब आपको ये याद रखना है कि अगर कोई चार्ज Q को हम V पोटेंशियल से एक्सेलरेट करते हैं तो उसको कितना काइनेटिक एनर्जी मिलेगा? Q इंटू V जितना उसको एनर्जी मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी मिलेगा। अब हमको ये पता है कि जो रेडियस है सर्कुलर पाथ का वो mv अपॉन क्यूबी है, मतलब मोमेंटम p अपॉन क्यूबी है। तो p के मोमेंटम p का जो फॉर्मूला हो जाए वो क्या हो जाएगा? क्यू आर बी हो जाएगा। यस और नो? अरे हाँ के ना तो बोल दो। हाँ सर। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर बाई 2m। वो तो हमको पहले से ही पता है। अब यहाँ पे p के बदले मैं क्या लिख सकता हूँ? तो मैंने mv। हाँ नहीं, p के बदले मैं लिख सकता हूँ क्यू आर बी। तो अब आपको ये जो फॉर्मूला है ना उसको हमेशा याद रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है कि कोई चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में मोशन में है तो उसका काइनेटिक एनर्जी का ये शॉर्टकट फॉर्मूला है क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 2m। तो बहुत सारे जगह पे ये शॉर्टकट आपको काम आएगा कि अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन में है तो उसके काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 2m है। वो तो सर बोलो। सर आवाज लैग हो रही है। कभी कभी ऐसा होगा एक आध दो सेकंड के लिए, को कभी ये मोबाइल में कभी मैसेज आता है ना कहीं पे, तो ऐसा एक आध दो सेकंड पे होता है। तो डोंट वरी अबाउट दैट, वो एक आध दो में सेकंड में सेट हो जाएगा। ओके। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 2m है। तो ये आपको एज ए शॉर्टकट याद रखना है। तो अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे बिकॉज ये जो काइनेटिक एनर्जी हो, जो चार्ज अगर कोई चार्ज v वोल्ट से एक्सेलरेट होकर मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो उसका काइनेटिक एनर्जी q ही तो है ही। अब उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बाई 2m। तो दोनों को कंपेयर कर देंगे। तो अगर दोनों को कंपेयर करते हैं तो q इंटू वी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर, यहाँ पे रेडियस को कैपिटल आर बोला हुआ है, रेडियस को कैपिटल आर बोला हुआ है तो हम कैपिटल आर लिखेंगे, क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 2m। अब एक चार्ज q कैंसिल हो जाएगा और मेरा जो टारगेट है ना वो q बाई एम को फाइंड करना है। तो अगर आप q बाई एम को सब जगह इक्वेशन बना देंगे तो ये हो जाएगा 2v अपॉन आर स्क्वायर बी स्क्वायर। q का एक पावर कैंसल, तो q बाई एम इज इक्वल टू 2v अपॉन आर स्क्वायर बी स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर। तो क्या ये बात समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। ये चीज आपको समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। यस सर। चलो अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 व्हेन, ऑप्शन है। हाँ अभी तो हमने डिस्कस किया, ऑब्वियसली अभी तो हमने डिस्कस किया। मैग्नेटिक हाँ फील्ड स्पीड एंड काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। एग्जैक्टली अभी हमने डिस्कस किया। तो काइनेटिक एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में कांस्टेंट ही होता है, सही बात है आपका। बट रिमेंबर फ्रेंड्स, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होता ना तो ऐसा नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज को मोशन में लाता है, एक्सेलरेट करता है। पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगता है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ता जाएगा। नेगेटिव चार्ज का
नेगेटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस द फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसका काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा नहीं हो सकता। चलो क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5 is a two very long conducting parallel wire are separated by the distance d. A two long parallel wire are separated by the distance d. तो यहाँ पे ये रहे हमारे दो कंडक्टिंग वायर और उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो d है। अब क्या है कि इक्वल करंट इज पास थ्रू देम म्यूचुअली इन द अपोजिट डायरेक्शन। अब दोनों में से करंट सेम पास हो रहा है बट अपोजिट डायरेक्शन में पास हो रहा है। दोनों में से करंट सेम है और अपोजिट डायरेक्शन में है। तो मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में ऐसा भी क्वेश्चन देखा हुआ है कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर, जस्ट अ मिनट, मैंने ये भी देखा है कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर एट द मिडल पॉइंट ऑफ द टू वायर। तो चलो मुझे ये बताओ कि वायर नंबर 1 है उसका मैग्नेटिक फील्ड, ये पॉइंट बीच में यहाँ पे जो पॉइंट है उसमें उसके अंदर, मतलब ये वायर नंबर 1 के द्वारा वो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा या बाहर आएगा? सोचो। वायर याद है ना आपको क्या करना है? यू हैव टू होल्ड द वायर ऑन योर राइट हैंड इन सच अ मैनर दैट योर फिंगर वाउंड अराउंड द वायर एंड थंब इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट के डायरेक्शन में अगर आप थंब रखते हो तो आपका जो फिंगर होगा वायर के आसपास जो अराउंड वाउंड होगा वो आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करेगा। तो मुझे ये कोई बताएगा कि ये पॉइंट पे वायर 1 के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में होगा? आउटवर्ड। अरे भैया कैसे सर आउट? 0 अरे कैसे होगा। 0? तो मैंने सर यहाँ पे पैरेलल। मैंने डायरेक्शन बताया आपको कि if you hold this wire keeping your thumb in the direction of current, then your finger will be wound like this। देखो मैंने ये बताया यहाँ पे, तो आपका जो फिंगर है वो ऐसे वाउंड होगा, ऐसे। सर बट वहाँ पे उस पॉइंट पे तो रिजल्टेंट 0 हो जाएगा ना। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। देखो वायर 1 का इनसाइड चला गया वो पता चला आपको, वायर 1 का मैग्नेटिक फील्ड ये पॉइंट पे, पी पॉइंट पे अंदर गया वो पता चला आपको। अब वायर 2 हाँ सर। से होल्ड करो, वायर 2 को वापस से होल्ड करो, बट नाउ योर थंब शुड बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो योर थंब विल बी इन द डाउनवर्ड, तो आपका फिंगर ऐसे वाउंड होगा। तो फिंगर को वाउंड करो आप, तो कैसे वाउंड होगा? देखो कि वायर को अगर एक से राइट हैंड में आप पकड़ते हो और फिंगर को वाउंड करते हो तो आपका जो फिंगर है ना वो ऐसे वाउंड होगा। देखो सोचो जरा। हाँ सर ट्वाइस हो जाएगा। तो अब देखो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट पी पे डबल हो रहा है, मतलब एक ही डायरेक्शन में है। तो B1 भी अंदर के साइड है, B2 भी अंदर के साइड ही है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डिस्टेंस, बट डिस्टेंस d/2 है क्रॉस। B2 का भी क्या आएगा? म्यू 0 आई अपॉन 2 पाई d/2, बिकॉज दोनों के बीच का डिस्टेंस d है, तो दोनों वायर से ये पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो d/2 हो जाएगा, ये भी क्रॉस आएगा। तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा? तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इसका डबल हो जाएगा, मतलब 2 कैंसिल उसको डबल करो, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड 2 म्यू 0 आई अपॉन पाई d होगा, और वो अंदर की साइड होगा। बट यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि व्हाट इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। ये तो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि व्हाट इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है कि कोई चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी के साथ ये प्लेन के परपेंडिकुलर एंटर हो रहा है, ये वायर के जो प्लेन है उसको परपेंडिकुलर कोई पार्टिकल v वेलोसिटी के साथ एंटर हो रहा है। तो कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी v वेक्टर? उसका डायरेक्शन भी कौन सा है? वो भी क्रॉस है।
अब ऐसा दिया गया है क्वेश्चन में कि एक चार्ज पार्टिकल जो है वो ये प्लेन के अंदर परपेंडिकुलरली एंटर हो रहा है, मतलब वो भी अंदर की तरफ आ रहा है, तो उसका डायरेक्शन भी क्रॉस रहेगा इनसाइड द प्लेन। तो अब मुझे ये बताओ कि दोनों के बीच का एंगल कितना होगा। वेक्टर बी एंड 0। बी दोनों पैरेलल हो गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों के बीच का एंगल 0 हो रहा है, और फोर्स का फॉर्मूला आपको पता होगा कि क्यू वी बी साइन थीटा। तो फोर्स कितना लगेगा भैया? 0। अब यहाँ पे फोर्स 0 होगा, यहाँ पे फोर्स क्यों 0 हो रहा है? ऐसा नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड 0 है, ऐसा नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड 0 है, बट वो एंगल 0 हो रहा है ना, इसलिए फोर्स 0 हो रहा है। क्या ये बात आपको समझ में आया? यस सर। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक और क्वेश्चन आपको कराया कि मैग्नेट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच में कितना है, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। हाँ, अगर दोनों वायर में सेम डायरेक्शन में करंट होता ना, दोनों वायर में सेम डायरेक्शन में करंट होता, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एग्जैक्टली सेंटर में कितना होता? तो नलीफाई हो जाता। तो नलीफाई हो जाता, तो 0 हो जाता। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया फ्रेंड्स आपको? यस सर। अब कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, इफ द सर हाँ बोलो। ये 6 वाले क्वेश्चन में तो वो वाली फॉर्मूला लगेगी ना, F इज इक्वल टू क्यू वी बी इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय आर। नहीं, गलत, गंदी बात, गंदी 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 बात। तो सर ये वाला समझ में नहीं। मैंने अभी 6 कराया नहीं है ना, अभी मैंने 6 कराया कि नहीं कराया? अभी तो मैंने स्टार्ट ही नहीं किया, तो मुझे स्टार्ट तो करने दो, उसके बाद। नहीं सर, आपने कल भेजा था ना, तो मैंने ट्राई किए थे थोड़े, हाँ 12 देखो, तक। मैं बताऊँ आपको, आपने ट्राई किया तो अच्छी बात है, बट हमारा एक यहाँ पे मेथड है, और मेथड ये है कि मैं आपको 2 टाइप के एमसीक्यू दूंगा। एक में लिखा होगा कि टेक्सचुअल एमसीक्यू, और दूसरे में लिखा होगा सेल्फ लर्निंग। तो टेक्सचुअल एमसीक्यू जो है वो मैं यहाँ पे एवरी एमसीक्यू मैं यहाँ पे आपको सिखाऊंगा, और सेल्फ लर्निंग वाले आपको खुद ट्राई करना है। अगर आप टेक्सचुअल भी ट्राई करते हो तो दैट इज वेल एंड गुड, वो अच्छी बात है, बट मैं ये कराऊंगा टेक्स्ट बुक वाले सारे एमसीक्यू मैं आपको कराऊंगा। तो अब 6 क्वेश्चन में है क्या? तो है ऐसा कि भाई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो रहा है, तो भाई भैया आपको पता ही है, अगर मैग्नेटिक फील्ड में वो एंटर हो रहा है तो वो क्या करेगा? अंदर एंटर होके वो एंटर कर होके करेगा क्या? यूसीएम। हाँ, दो चीज कर सकता है, या तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर सकता है, या फिर वो हेलिकल मोशन। तो उसके रेडियस का फॉर्मूला क्या है? अंदर आने के बाद उसके रेडियस का फॉर्मूला है क्या भैया? एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। अगर परपेंडिकुलर एंटर हो रहा है तो वो एम वी अपॉन क्यू बी हो जाएगा। तो अब सीधी सी बात है, अगर आप स्पीड बढ़ाते हो कोई बाई कोई भी हिसाब से, आप कुछ भी करके अगर उसका स्पीड बढ़ाते हो, देखो मैग्नेटिक फील्ड का तो मतलब स्ट्रेंथ नहीं है कि वो स्पीड बढ़ा सके, बट बाई एनी अदर रीजन, if by anyhow you manage to increase the speed, then definitely what happen, ये जो रेडियस है ना वो प्रोपोर्शनल टू एम वी है। तो अगर आप स्पीड बढ़ाते हो तो क्या होगा भैया? रेडियस बढ़ जाएगा। हाँ, तो रेडियस बढ़ेगा। इफ यू इंक्रीज द स्पीड देन इट्स रेडियस विल आल्सो गेट इंक्रीजेस। तो क्या ये चीज आपको समझ में आया? यस सर। अभी क्लियर है विनीत? कौन बोल रहा था अभी? हाँ सर। इज इट ओके? यस सर। ओके, friends, come to the 7th question. Question number 7. Question is two parallel thin wires, each carrying current I, are kept at the separation r from each other. Hence the magnitude of the force per unit length is given by. चलो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि दो वायर के बीच का, मैंने एक है ना एक पूरा एक चार्ट बना के आपको दिया था कि जितने भी फोर्स इस चैप्टर में आ रहे हैं, जितने भी फोर्सेस के फॉर्मूला ये चैप्टर में थे ना, उसका सारे मतलब सारे फोर्सेस का मैंने एक अलग से आपको एक नोट्स बना के दिया था। तो आई होप आपने वो मतलब मैंने जितने भी यहाँ पे मैं मेरा जो ये बोर्ड वर्क होता है ना, उसके मैं स्क्रीनशॉट आपको एवरी टाइम भेजता हूँ। तो नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू
to manage to store that screenshot or manage to print out of that screenshot and write down it and some particular book, वो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको वो करना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है वो चीज। वो मैंने कंक्लूजन्स लिखे होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। उसको एक पूरा मतलब आपको एक नोट बनाना पड़ेगा, और जितने भी चैप्टर जितने भी लेक्चर्स है उसके सारे मैंने दिया हुआ है। तो आप एक काम करो, चैप्टर वाइज उसका जितने भी मैंने ये स्क्रीनशॉट भेजा है, तो आपको जहाँ पे लिखे तो पूरा लिख दो एक बार, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत लास्ट मोमेंट पे बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। चलो, अब किसी को पता है व्हाट वाज द फॉर्मूला बिटवीन द force between the two very long parallel wires? याद है किसी को? चार्ज के ऊपर QV क्रॉस B था, QV sin थीटा, और करंट एलिमेंट के ऊपर IDL क्रॉस B था। म्यू आई स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर। नहीं, आप थोड़ा गलत बोल दिया। म्यू 0 I1 I2L upon 2 pi r, that was the formula. Fortunately here both the currents are same. Here the I1 and I2 are same, and hence it comes out to be a mu 0 I square L upon 2 pi r. But you had not asked about the force, you had asked about the force per unit length. तो आपको फोर्स पर यूनिट लेंथ करना है, मतलब F/L करना है। तो अब जाके आपका आंसर आएगा म्यू 0 I स्क्वायर अपॉन 2 पाई r। तो चलो, क्या ये बात आपको समझ में आया? यस सर। Is it okay, friends? यस सर। Come to the question number 8. At each of the two end of the rod of a length 2r, a particle of mass m and charge q are attached. If the rod is rotated about its center with the angular speed omega, the ratio of the magnetic dipole moment to the angular momentum. क्या इस टाइप का कोई थ्योरी हमने डिस्कस किया था? गायरोमैग्नेटिक रेशियो वाला थ्योरी कोई था, हमने डिस्कस किया था कोई? 11th में। अरे अभी ये चैप्टर में we had proved for electron, अगर कोई इलेक्ट्रॉन, याद करो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास रिवॉल्व हो रहा है, तो हमने प्रूव किया था कि उसका जो ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट होता है, उसका फॉर्मूला हमने ये प्रूव किया था, इफ यू रिमेम्बर। और वहां पे मैंने ऐसा भी बताया था कि भाई अगर कोई और चार्ज है, फॉर एनी अदर चार्ज Q, तो ये डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू Q/2m इनटू द एंगुलर मोमेंटम। ये गायरोमैग्नेटिक रेशियो वाला थ्योरी था ना, E/2m वाज इन शो, E/2m इज कॉल्ड अ गायरोमैग्नेटिक रेशियो। तो ये डाइपोल मोमेंट है m, ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट है, और ये एंगुलर मोमेंटम है। तो उसका रेशियो हमने ऑलरेडी प्रूव किया हुआ है। तो कोई भी चार्ज के लिए उसका उसका ऑर्बिटल डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक और उसका जो एंगुलर मोमेंटम है उसका रेशियो Q/2m होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो है ना, वो तो हमने कोई एक चार्ज अगर रिवॉल्यूशन करता है, कोई एक ही चार्ज, तो उसके लिए ये मैंने प्रूव किया हुआ है, एक ही चार्ज के लिए। यहाँ पे तो दो चार्ज है, तो दो चार्ज है तो क्या होगा कि चार्ज का वैल्यू डबल हो जाएगा, 2q हो जाएगा, बट डिनोमिनेटर में मास भी डबल होगा ना, डिनोमिनेटर में मास भी डबल हो जाएगा, तो वापस से रेशियो क्या आएगा? सेम आएगा। इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड्स? यस सर। तो अगर चार्ज डबल हो रहा है तो साइमल्टेनियसली मास भी डबल हो रहा है ना, तो रेशियो जो मिलेगा वो वही का वही मिलेगा, रेशियो तो वही का वही मिलेगा। इज इट ओके फ्रेंड्स? यस सर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। देखो, क्वेश्चन ऐसा है कि चार्ज्ड पार्टिकल इज मूविंग विद द वेलोसिटी v इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B, द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज इज मैक्सिमम इन विच सर्कमस्टेंसेस, इन विच कंडीशन?
कौन से कंडीशन में मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स लगता है? तो पहले तो मुझे ये बताओ कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स? QVB sin थीटा। क्रॉस QVB sin थीटा। अब ये बताओ कि कौन से एंगल के लिए ये फोर्स मैक्सिमम होगा? 90। तो अगर आपको फोर्स मैक्सिमम करना है तो साइन थीटा का वैल्यू 1 करना पड़ेगा, मतलब थीटा कितना करना पड़ेगा आपको? 90। मतलब अब थीटा क्या है? तो वेक्टर बी एंड वेक्टर बी के बीच, वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर एंड वेक्टर बी के बीच का एंगल है, तो बी मस्ट बी परपेंडिकुलर टू वी। तो ऐसा कोई ऑप्शन है कि बी एंड वी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर? तो यस, ये रहा म्यूचुअली परपेंडिकुलर वाला जो ऑप्शन है ना, दैट विल बी द राइट आंसर। चलो, ये समझ में आया आपको? यस यस सर। सर। चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। आईएमपी क्वेश्चन, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग 10th क्वेश्चन आईएमपी। क्वेश्चन ऐसा है कि आपके पास एक 1 मीटर लेंथ का वायर है, 1 मीटर लेंथ का वायर है, और उसने आपको क्या उसको आपने क्या किया कि एक सर्कुलर कॉइल में आपने उसको वाउंड किया, मतलब 1 मीटर का एक वायर है, उसको आपने टर्न करके एक लूप बनाया। तो क्वेश्चन ऐसा है कि ये लूप का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा? तो कोई मुझे बताएगा पहले तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या है? कोई? नहीं है। NI है, वेरी गुड। तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला तो आपको पता है कि NI है। अगर वन ओनली वन टन इज देयर देन इट शुड बी अ IA। इज इट ओके फ्रेंड्स? यस सर। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये जो लूप वायर है उसका लेंथ L है, तो उसमें से ही मैंने ये 2 पाई R वाला एक रिंग बनाया हुआ है, तो ये जो 2 पाई R जो है वो लेंथ L जितना होगा। यस सर। लेंथ तो 1 मीटर दिया हुआ है, तो 1 इज इक्वल टू 2 पाई R। तो अब इसका रेडियस क्या हो जाएगा भैया? 1/2 पाई मीटर। क्या ये बात आपको समझ में आया? यस सर। अब यहाँ पे IA, और A के बदले में क्या लिख सकता हूँ? पाई R स्क्वायर, पाई R स्क्वायर। अब I का दिया हुआ है कि 1 एम्पियर है, एंड रेडियस हमको मिल गया कि 1/2 पाई, द होल स्क्वायर करोगे तो आपको फाइनली आंसर क्या मिलेगा? 2 पाई का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर। न्यूमरेटर में एक पाई है, डिनोमिनेटर में पाई स्क्वायर है, तो एक पाई डिनोमिनेटर बचेगा, तो आंसर आ जाएगा 1/4 पाई, एंड इसका यूनिट जो है वो एम्पियर मीटर स्क्वायर है। आई मतलब एम्पियर, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर। तो क्या ये चीज समझ में आया आपको? यस सर। चलो मुझे ये सोच के बताना, थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। मुझे आंसर बता दो कि अगर इसी क्वेश्चन में ऐसा दिया होगा, अगर दिया है कि हमने 1 मीटर के वायर में से हमने ऐसा कॉइल बनाया जिसके 2 टन है, 2 टन आ जाए, जिसके 2 टन है, तो क्या होगा? वायर वही का वही है, बट उसमें से हमने ऐसा कोयल बनाया, ऐसा लूप बनाया कि जिसके अंदर 2 टन है। तो व्हाट शुड बी द आंसर इन द सेम क्वेश्चन? थोड़ा सोच के बताओ, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 1-2 मिनट का, सोच के बताओ। 1/2 पाई। नहीं, रॉन्ग आंसर। रॉन्ग आंसर। चलो और कोई? चलो 50 रुपीज प्राइज अभी मैं आपके अकाउंट में पेटीएम में ट्रांसफर करूंगा, अगर कोई आंसर 2 मिनट में देगा तो। चलो यहाँ पे एक लूप के बदले, एक टन के बदले मैंने उसी वायर में से 2 टन को वाउंड करके एक लूप बनाया, एक कॉइल बनाया है, तो व्हाट शुड बी द न्यू डाइपोल मोमेंट? चलो, है कोई माइका लाल? सर सेम ही रहेगा। रॉन्ग आंसर। सर आई बाई पाई। आई इज 1 एम्पियर।
So 1 upon pi you want to take, but it is a wrong answer. तो और कोई बताएगा? 1/8 pi. कौन बोला? श्रेया. श्रेया. तो वेरी गुड एंड इट इज द राइट आंसर. सो श्रेया बताओ कैसे किया? એનું ડબલ થઈ જશે એટલે कौन डबल होगा? એમ્પિયર એનું ડબલ થાય ને એટલે एम्पियर डबल होगा. હા कौन सा एम्पियर? 1/8. चलो बताओ कैसे किया. देखो पहली बात तो ये है कि अब जो लेंथ है ना वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 पाई होगा. अगर 2 टन है तो कोयल का टोटल लेंथ कितना हो जाएगा? इफ द कोयल इज कंसिडर 2 टन, सो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द वायर? जो जो कोयल के अंदर वाउंड किया उसका वायर का टोटल लेंथ 2 इंटू 2 पाई हो जाएगा. तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 2 पाई. तो अब ये जो रेडियस है, वैसे लेंथ तो 1 मीटर है, तो रेडियस अब जो होगा वो क्या हो जाएगा कि 1/4 पाई हो जाएगा. पहली बात, रेडियस 1/2 पाई के बजाय 1/4 पाई मीटर हो जाएगा. अब न्यू डाइपोल मोमेंट इज इक्वल्स टू NIA, वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्न. अब नंबर ऑफ टर्न 1 नहीं है, 2 है. करंट 1 एम्पियर एंड पाई r², बट अब r का वैल्यू कितना आएगा? 1/4 पाई द होल स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू 1/4 पाई का स्क्वायर हो जाएगा 16 पाई स्क्वायर. पाई गेट कैंसल, 2 8 16. So 1/8 पाई एम्पियर मीटर स्क्वायर इज द आंसर. तो क्या ये बात आपको समझ में आया? Yes, sir. So think about it. Think about this kind of question. Okay. सर वो L इक्वल्स टू 2 इंटू 2 पाई पता नहीं चला. तो सोचो कि हमारे पास जो कॉइल है उसके अंदर कितने टर्न्स है? 2. तो उसका लेंथ कितना होगा ये वायर का? अभी ये जो कॉइल के अंदर जो वायर है उसका लेंथ कितना होगा? इट इज कंसिस्ट. अच्छा हमें 2 सर्कल समझ के करना है. हाँ तो वो समझना हमको समझना ही पड़ेगा ना भाई, वो हमको समझना ही. हाँ सर बराबर. बस 2 टन है तो उसका 2 टन को मिलाना पड़ेगा ना, तो उसका लेंथ वायर होगा. बट आफ्टर ऑल इट इज मेड फ्रॉम द 1 मीटर वायर. तो अब L इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 पाई. इज दैट क्लियर? यस सर. चलो क्वेश्चन नंबर 11. देखो यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि एज अ शोन इन द फिगर, अ सर्कुलर कंडक्टिंग वायर कैरीज अ करंट I इन द XY plane with the center at O. Now a current is flowing from this loop, so its tendency is. तो एक ये सर्कुलर कोइल में से करंट पास हो रहा है तो उसका टेंडेंसी क्या रहेगा? उसका टेंडेंसी कॉन्ट्रैक्ट करने का रहेगा या उसका टेंडेंसी एक्सपांड होने का रहेगा? ऐसा क्वेश्चन है. तो फ्रेंड्स आप ध्यान से देखो, ये क्वाड्रेंट नंबर 1 एंड क्वाड्रेंट नंबर 3 देखो आप. तो वहां पे दोनों साइड दिख रहे हो आपके, ये जो करंट है दोनों में एक दूसरे के अपोजिट साइड है. तो एक दूसरे के अपोजिट साइड अगर करंट फ्लो हो रहा है तो इन दोनों एक दूसरे को आपस में वो क्या करेंगे? याद करो, अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है दो वायर के अंदर, तो वो क्या करेंगे एक दूसरे को? फ्रेंड्स किसी को मैग्नेटिक फील्ड एडप्ट करेंगे. अरे नहीं भैया यार, आप क्या कर रहे हो? अगर दो वायर है तो सेम डायरेक्शन में करंट होता है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते. अच्छा रिपेल. हाँ बराबर. सेम डायरेक्शन में करंट है तो उसके बीच में अट्रैक्शन होगा, और अगर दोनों के बीच में अपोजिट डायरेक्शन में करंट है तो हमने ऐसा प्रूव किया हुआ है कि वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे.
तो यहाँ पे दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और ये सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट वाले जो वायर्स है ना, वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बिकॉज उसमें भी अपोजिट डायरेक्शन में है। मतलब ये सामने वाले जो आर्क्स है वो एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, तो उसका टेंडेंसी क्या होगा? एक्सटेंड। एक्सपांड कर। हाँ, उसका टेंडेंसी होगा एक्सपांड होने का। क्या ये बात आपको समझ में आया? यस यस सर। सर। बट मेरी Yes, बात sir. ध्यान से सुनो, मैंने अभी एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पढ़ा है कि अगर कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग, और स्प्रिंग में से करंट पास हो रहा है, तो अगर स्प्रिंग में से करंट पास हो रहा है तो उसका टेंडेंसी क्या होगा? तो स्प्रिंग में जितने भी टर्न्स है, स्प्रिंग के अंदर जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स है, वो सारे टर्न्स में एक ही डायरेक्शन में करंट पास हो रहा है। सर तो वो टर्न्स के बीच में अट्रैक्शन है। तो अभी ये सारे टर्न्स के अंदर एक ही डायरेक्शन में करंट पास हो रहा है, तो ये सारे टर्न एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो स्प्रिंग का क्या हो जाएगा? स्प्रिंग का कंप्रेशन हो जाएगा। तो अगर कोई लूप में से वायर पास हो रहा है तो वो लूप एक्सपांड होगा, बट अगर स्प्रिंग में से वो पास हो रहा है तो वो क्या करेगा? कंप्रेशन होगा। चलो, क्या ये बात आपको समझ में आया? यस सर। एम आई ऑडिएबल टू यू टू क्लियरली? क्या मेरी आवाज आपको आ रही है क्लियरली? यस Yes, सर। sir. तो कशिश, कशिश, हाँ सर, यहाँ पे कनेक्शन प्रॉब्लम हो रहा है कनेक्शन प्रॉब्लम मतलब? सर। बार बार बीच में आपका आवाज नहीं आ रहा है बीच में, फिर उसके बाद एनीबडी अदर फीलिंग द सेम प्रॉब्लम? नहीं सर, वो मेरे साइड से है। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। तो आपको यहां से क्या पता चला? अगर कोई एक लूप है तो वो एक्सपांड करने का ट्राई करेगा, बट अगर स्प्रिंग में से करंट पास हो रहा है तो वो क्या होगी? स्प्रिंग का क्या होगा? स्प्रिंग का क्या होगा? कंप्रेशन। कंप्रेशन होगा। फ्रेंड्स, ये लेट कौन आ रहा है अभी? ये देखो, अभी कोई आया, कौन आया लेट अभी? इतने अभी कौन आया? अभी कौन एंटर हुआ? देखो फ्रेंड्स, ये आप थोड़ा, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा समझ के आगे बढ़ो फ्रेंड्स। इट इज नॉट गुड। आपको मतलब थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना पड़ेगा। तो ये बराबर चीज नहीं है। आपको टाइम टू टाइम लेक्चर अटेंड करना है, टाइम टू टाइम एग्जाम देना है, टाइम टू टाइम होमवर्क करना है। यहाँ पे बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक लॉकडाउन हम आपके साथ 100% कनेक्टेड नहीं रहते हैं, तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो जाता है कि आप टाइम के हिसाब से काम करो। देखो फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम आपको ही लास्ट में होगा, तो प्लीज आप साथ साथ में काम करो। ग्रीवा, ग्रीवा पटेल इज देयर? ग्रीवा, यस सर। हैव यू कम सो मच लेट? सर फ्राइडे को स्कूल 1 घंटा ज्यादा होती है। मतलब कब खत्म होता है स्कूल? 1:40। आज लेट हो गया थोड़ा। तो आप एक फ्राइडे का स्कूल के जो लेक्चर्स है उसको कुछ करके उसके मतलब स्क्रीन रिकॉर्ड कर लो या फिर करो, बट ये लेक्चर अटेंड, मेरे लेक्चर में मिस मत करो आप। ओके सर। फ्रेंड्स, मैंने कल आपको एक पेपर भेजा था। अब मैं है ना यहाँ पे पेरेंट्स को, अगर आपके पेपर्स यहाँ पे, मुझे बहुत सारे बच्चे ऐसे के जो पेपर टाइम टू टाइम नहीं सबमिट करा रहे हैं, तो उन लोगों के पेरेंट्स को मैं अभी ऑफिस में बुलाने वाला हूँ। तो आप पेपर कंपल्सरीली सबमिट करो, अ, और मैं पेरेंट्स के साथ आपके इंटरेक्शन करूंगा। आपके पेरेंट्स को मैं ऑफिस पे बुलाने वाला हूँ अभी। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन ऐसा है कि इक्वल करंट आर पासिंग थ्रू
equal current are passing through a two very long wire. तो अभी हमने डिस्कस कर लिया है कि अगर Sir, it will attract each other. हाँ, क्या बोल रहे हो? It will attract each. अरे अपोजिट डायरेक्शन में, अभी तो मैंने लिखा यार। तो repel, sorry sir. हाँ, एट अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो वो दोनों को एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो अभी मैंने डिस्कस किया ये क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पे सेम डायरेक्शन अट्रैक्शन, अपोजिट डायरेक्शन रिपल्सन, तो ये आपको अभी याद रखना है। ये चार्ज से उल्टा है। चार्ज में क्या होता है? लाइक चार्ज रिपल होता है। सेम डायरेक्शन यहाँ पे लाइक चार्ज रिपेल, अनलाइक सॉरी लाइक चार्ज हाँ रिपेल, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट, बट यहाँ पे उल्टा है। सेम डायरेक्शन अट्रैक्शन and opposite direction repulsion. So question number 13 पे आ जाओ। A charged particle is moving in the uniform magnetic field. Then what is the following option is true? From them which of the following is true? चलो बताओ मुझे। एक कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में फ्लो हो रहा है, मतलब जा रहा है, मतलब वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जाने के बाद तो वो सर्कुलर मोशन ही करेगा या फिर हेलिकल मोशन करेगा। बट कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट है? कोई बताएगा मुझे? सी। सी। कौन बोला? साकिर। साकिब रॉन्ग आंसर। ए। आपने सी क्यों बोला साकिब? सर वो मोमेंटम था ना इसके लिए। इट इज अ रॉन्ग आंसर। और कोई? सर ए हाउस सर। ए हाउस है। वाई ए? सर काइनेटिक एनर्जी चेंज ना થાય તમે સમજ કીધું તો। हाँ, बात सच्ची, काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, सही बात है। तो फिर मोमेंटम का क्या होगा? देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। मोमेंटम का भी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, बट वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो मोमेंटम का भी डायरेक्शन चेंज होगा। मतलब कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी का अगर डायरेक्शन चेंज होता है तो वो वेक्टर क्वांटिटी, उसको कांस्टेंट हम नहीं बोल सकते हैं। वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन या दोनों अगर चेंज होते हैं तो वो क्वांटिटी कांस्टेंट नहीं कह सकते हैं। मोमेंटम इज अ काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड उसका डायरेक्शन चेंज होता है, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि मोमेंटम कांस्टेंट है। तो मोमेंटम के डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब ये हुआ कि मोमेंटम कांस्टेंट नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा फ्रेंड्स? व्हाट शुड बी द ऑप्शन? ए। Momentum changes because direction changes, but the kinetic energy does not change. It is the right answer. Option A is the right answer. क्या ये बात आपको पता चली फ्रेंड्स? Is that clear to you? यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। देखो 14 क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि यहाँ पे हमको देखो ऐसे दो सिस्टम है, एक में दोनों में से 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है और दूसरे केस में दोनों में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। अब तो क्वेश्चन क्या है कि as shown in figure, two very long straight wire are kept parallel to each other and a 2 ampere current is passed through them in the same direction. In this condition, the force between them is F. मतलब ये पहले केस में फोर्स F है। अब क्या करते हैं? If the current in the both the wire is made 1 ampere in place of 2 ampere and the direction is reversed in both the wires, then what should be the new force? चलो, तो पहले फोर्स F था, अब क्या हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन है। तो कोई मुझे बताएगा, कोई मुझे ये बताएगा कि क्या आंसर आना चाहिए? पहले फोर्स F था, अब मैंने क्या किया, मैंने है ना अब दोनों वायर के अंदर का जो करंट है उसको मैंने हाफ कर दिया। दोनों वायर के अंदर का जो करंट है उसको मैंने हाफ कर दिया। तो व्हाट शुड बी द न्यू क्वेश्चन इज दैट व्हाट शुड बी द न्यू फोर्स बिटवीन देम। और वो पहले, चलो मुझे ये बता दो, चलो मुझे ये एटलीस्ट ये बताओ कि पहले अट्रैक्शन हो रहा है या रिपल्सन हो रहा है? अट्रैक्शन। या पहले जो है ना वो अट्रैक्शन हो रहा है बिकॉज सेम डायरेक्शन, और उसके बाद सेकंड केस में अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा? अट्रैक्शन। अट्रैक्शन ही होगा।
बट जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। हाँ, वो चेंज होके क्या हो जाएगा? तो आपको पता है, अभी मैंने फॉर्मूला लिखा था कि दो वायर के बीच का जो फोर्स है वो μ0 I1 I2L अपॉन 2πr होता है, मतलब F प्रोपोर्शनल टू I1 I2 होता है। तो फर्स्ट केस में I1 एंड I2 का जो मल्टीप्लीकेशन है वो 4 है, और सेकंड केस में उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? सेकंड केस में I1 I2 का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? 1 इंटू 1 क्या होता है? 1। तो 1 हो जाएगा। तो पहले वो मल्टीप्लीकेशन 4 है, अब मल्टीप्लीकेशन 1 हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो, 3 टाइम्स। अरे यार, एफ डैश अपॉन एफ इज इक्वल्स टू I1 I2 डैश अपॉन I1 I2। तो I1 I2 डैश 1 है, I1 I2 4 है, तो अब न्यू जो नया जो फोर्स है वो ऑब्वियसली रिड्यूस टू 4 टाइम, 3 टाइम कम होगा, मतलब 4 टाइम्स कम, मतलब न्यू फोर्स विल बी द F/4, बट अट्रैक्टिव और रिपल्सिव? अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव। तो ये F/4 अट्रैक्टिव विल बी द राइट आंसर। दो रिपल्सिव वाले ऑप्शन है, दो अट्रैक्टिव ऑप्शन है, और दोनों में F/2 है, दोनों में F/4 है, तो F/4 एंड अट्रैक्टिव इज द राइट आंसर। इज दैट क्लियर टू यू फ्रेंड्स? क्या ये बात समझ में आया? यस सर। अट्रैक्टिव। तो क्वेश्चन नंबर 15, अ वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड। चलो ये नाम सुन के आपके दिल में से कुछ बाहर आया? वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड, ऐसा सुन के कुछ बोलने की इच्छा हो रही है आपकी? मॉर्निंग। मॉनी, हाँ, मॉनी। तो अ वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड, इट्स अ मैग्नेटिक फील्ड इज अ मॉनी। अब दिया हुआ है कि उसके वापस से एन लेयर है, एन लेयर, तो इन टू द एन, तो ये इसको मैं एन डैश बोल देता हूँ, और नंबर ऑफ लेयर्स एन है, तो एन लेयर तो इंटू एन करना पड़ेगा, मतलब ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा μ0 कैपिटल Ni/L इंटू स्मॉल एन, वेयर स्मॉल एन इज द नंबर ऑफ लेयर्स। तो क्या इसमें कहीं पे भी सोलेनॉइड का डायामीटर आता है? कहीं पे देखो तो ये फॉर्मूला में नो। नो, तो उसमें से कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट होगा? देखो, सी। हाँ, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द डायामीटर। क्या ये बात आपको समझ में आया? यस सर। चलो 16 क्वेश्चन। A very high resistance voltmeter is joined in the figure as shown in figure. Is joined with the resistance as shown in figure. So what is the reading of the voltmeter? तो आपको एक सर्किट दिया हुआ है और आपको वोल्टमीटर का रीडिंग फाइंड करना है। वोल्टमीटर का रीडिंग फाइंड करना है। आपको एक सर्किट दिया हुआ है एंड वोल्टमीटर का रीडिंग फाइंड करना। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले एक काम करो, ये जो वोल्टमीटर दिया ना उसको निकाल दो, इसको पिक्चर में से ही निकाल दो। इस टाइप का मतलब कोई भी क्वेश्चन में अगर मैं एक स्टैंडर्ड मेथड है, एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है कि अगर आपको वोल्टमीटर का रीडिंग चाहिए तो आप एक काम करो, सबसे पहले वो वोल्टमीटर को हटा दो वहां से। तो अब देखा, अब सर्किट को देखो, देखा? अब मुझे बताओ कि ये सर्किट में करंट कितना फ्लो होगा? तो करंट फ्लो होगा सर्किट में, दैट विल बी अ नेट, हाई। हाँ, नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस। तो ये सर्किट का ईएमएफ तो कितना है, 10 वोल्ट है, उसका नेट रेजिस्टेंस कितना है, 10 + 10 12 20 है, मतलब कितना करंट पास होगा, 0.5 एम्पियर। 0.5। तो ये बैटरी में से जो करंट निकलेगा वो 0.5 एम्पियर। चलो ये पता चला। अब क्या करना है आपको, अब आपको ये, अब आपको जिस रेजिस्टेंस के बीच में वोल्टमीटर कनेक्ट किया था उसका पोटेंशियल फाइंड करना है। तो आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द एनी रेजिस्टेंस, IR। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अगर उसमें से करंट I पास हो रहा है और उसका रेजिस्टेंस R है तो उसका जो पोटेंशियल है वो IR है। अब I का वैल्यू तो हमने फाइंड किया कि 0.5 है, R का वैल्यू 10 ओम है, तो ये वोल्टेज उसका 5 वोल्ट हो जाएगा। तो ऑब्वियसली अब आप यहाँ पे वोल्टमीटर कनेक्ट करोगे तो आपको कौन सा रीडिंग देगा, कौन सा रीडिंग, ये रेजिस्टेंस का वोल्टेज 5 वोल्ट है, तो वोल्टमीटर आपको कौन सा रीडिंग देगा,
5 वोल्ट। 5. तो आपको पता चला कैसे इस ये वोल्ट मीटर वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना होता है आपको। सबसे पहले क्या करना है कि आपको वोल्ट मीटर को निकाल देना है सर्किट में से। अब आपको क्या करना है कि जिस कंपोनेंट के अक्रॉस वोल्ट मीटर कनेक्ट किया हुआ है वहां से कितना करंट पास हो रहा है वो आप फाइंड कर दो, और उसके बाद उसके वोल्टेज फाइंड कर दो, तो दैट विल बी योर आंसर। इज दैट क्लियर टू यू? Yes, sir. Yes, So sir. question number 17. A question is that a charged particle gains some energy. तो हमको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड का तो ताकत नहीं, मैग्नेटिक फील्ड की तो कैरेक्टरिस्टिक ही नहीं है कि वो चार्ज पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी दे। वो चार्ज पार्टिकल को खाली एक ही चीज करा सकता, दो ही चीज करा सकता है, या तो वो सर्कुलर मोशन कराएगा या फिर वो हेलिकल मोशन Helical motion. के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड और कुछ नहीं कर सकता। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल एनर्जी गेन करता है तो वो डेफिनेटली किसके द्वारा करता होगा? Electric field. तो अगर उसको अगर कहीं से एनर्जी मिल रही है तो दैट मस्ट बी फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या ये बात आपको समझ में आया? इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? 17th क्वेश्चन समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. चलो अब एक और क्वेश्चन है। प्लेस an electric and magnetic field both are in the downward direction। ऐसा दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, एंड एक उसका एक इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी भी डाउनवर्ड है। चलो तो मतलब तीनों वेक्टर्स जो है ना वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो कौन कौन से 3 वेक्टर की बात कर रहा है? तो कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नीचे की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड भी नीचे की तरफ है, एंड वहां पे जो इलेक्ट्रॉन है वो भी नीचे की तरफ जा रहा है, उसका वेलोसिटी भी वही है। तो पहली बात तो ये कि मैग्नेटिक फोर्स तो 0 होगा, मैग्नेटिक फोर्स तो लगेगा ही नहीं, मैग्नेटिक फोर्स तो लगेगा ही नहीं। पूछो क्यों? बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू बी साइन थीटा। अब यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर ने बी वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी एंड बी वेक्टर पैरेलल है, तो उसका एंगल कितना हो जाएगा उसके बीच में? बोल भी 0. 0, तो एंगल 0 तो साइन 0 क्या होता है? 0. तो मैग्नेटिक फोर्स तो लगेगा ही नहीं। अब आपको ये पता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है उसका फॉर्मूला क्यू ही है, बट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो सोचो इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा है और उसके ऊपर जो फोर्स है ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो नीचे है तो उसके ऊपर फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा? Upward. अपवर्ड। तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है नीचे बट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, तो उसका वेलोसिटी ग्रेजुअली बढ़ेगा या डिक्रीज होगा? Decrease होगा. बस खत्म बात। तो वही तो क्वेश्चन है कि क्या होगा। तो क्या होगा? इट बैंड टुवर्ड द लेफ्ट, नो इट्स बैंड टुवर्ड्स द राइट। वो बैंड तो नहीं होगा कहीं पे भी। विल गेन द वेलोसिटी, नो विल लॉस द वेलोसिटी, राइट। चलो क्या ये बात समझ में आया आपको? Yes, sir. अगर इलेक्ट्रॉन के बदले प्रोटॉन होता तो क्या होता? Increase होती. तो उसका वेलोसिटी इंक्रीज होता। क्या ये बात समझ में आया? Yes, sir. So come to the next question, that is the 19th question. 100 टन्स पर सेंटीमीटर। देखो हमको यहाँ पे नंबर ऑफ टन्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ टन्स पर 1 सेंटीमीटर। 100 पर सेंटीमीटर, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ 10,000? नहीं, हाँ 10,000 पर मीटर कह सकता हूँ मैं इसको। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो 10⁻², ऊपर से नीचे से ऊपर जाएगा तो 10⁻² हो जाएगा, तो इट विल बी कम्स आउट टू बी 10,000। तो नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ आपको मिल गया है, दिया हुआ है। एंड वेरी लॉन्ग सोलेनोइड, चलो वेरी लॉन्ग सोलेनोइड लिखा हुआ है तो दिल में से कुछ बाहर आया? Money. मॉनी, मॉनी। तो μ0 4π10⁻⁷, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ 10,000 दिया हुआ है, एंड करंट भी दिया हुआ है 5 एम्पियर। तो क्या आप ये कर सकते हो कि मुझे करवाने की जरूरत है? कैन यू डू इट योरसेल्फ? हाँ या ना? अरे ये मल्टीप्लिकेशन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे?
हाँ सर. Am I audible to you all? Yes sir. Okay. So question number 20. Angular speed of a charged particle is independent of. देखो हमने ऑन द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा था कि एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला क्या है, QB/m है। तो ये फॉर्मूला में क्या नहीं आता है, जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें कौन सा नहीं है? मास तो है, देखो फॉर्मूला में मास है, बी। चार्ज भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, बट वेलोसिटी स्पीड नहीं है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड। इज दैट क्लियर? यस सर। 21st क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने बहुत ही सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर मैंने इसको देखा हुआ है। इट इज अ वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट इन द 2018 JEE this question was also asked in the somewhere in just before 2 or 3 years नीट में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। बहुत सारे क्वेश्चन में, बहुत सारे जगह पे मैंने ये क्वेश्चन देखा हुआ है। प्रोटॉन, ड्यूटेरॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैविंग इक्वल काइनेटिक एनर्जी, सारे तीनों का काइनेटिक एनर्जी सेम है, एंड दे एंटर्स इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हो रहा है, तो उसके जो रेडियस है उसका रिलेशन फाइंड करना है। तो पहले तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि प्रोटॉन का मतलब क्या हुआ। तो प्रोटॉन का मतलब होगा 1h1। इसका अज्यूम कर लेंगे कि मास m है एंड चार्ज q है, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं। तो ड्यूटेरॉन का होता है 1h2, तो उसका चार्ज तो q ही रहेगा, बिकॉज उसका एटॉमिक नंबर तो वो सेम ही है, बट मास उसका डबल हो जाएगा प्रोटॉन से। एंड अल्फा पार्टिकल क्या है पता है भैया आपको? अल्फा पार्टिकल जो है वो और कोई नहीं, हीलियम न्यूक्लियस है। अल्फा पार्टिकल कोई और नहीं, हीलियम न्यूक्लियस है। तो मुझे ये बताओ कि उसका मास कितना होगा? मास उसका 4m हो जाएगा, और चार्ज कितना होगा? चार्ज हो जाएगा 2q। फ्रेंड्स, एम आई ऑडिएबल टू यू? मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes sir. तो यहाँ पे क्या होगा कि चार्ज अल्फा पार्टिकल का प्रोटॉन से डबल है, बट मास उसका 4 टाइम्स है। अब मुझे करना क्या है? मुझे ये फाइंड करना है कि रेडियस के बीच में रिलेशन क्या है। तो फ्रेंड्स, हमको ये पता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्टकट हमको पता है कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है, यू नो द फॉर्मूला ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। चलो, किसी को याद है? अभी मैंने वो शॉर्टकट फॉर्मूला आपको बोला था कि याद रखना है। कोई बताएगा मुझे फॉर्मूला? व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर द काइनेटिक एनर्जी इन द मैग्नेटिक फील्ड? अभी मैंने आपको लिख के दिया था, Q² R² B² by 2m। So this is the formula of the kinetic energy। अब यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि सारे, देखो यहाँ पे रेडियस का फाइंड करना है, तो एक काम करते हैं, रेडियस को सब जगह इक्वेशन बना देते हैं। तो रेडियस इज इक्वल टू 2m काइनेटिक एनर्जी, 2m काइनेटिक एनर्जी अपॉन Q² B²। तो यहाँ पे ऑल द पार्टिकल हैविंग अ सेम काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी सबका सेम है। चलो, नंबर 1। नंबर 2, ऑल ऑफ देम आर एंटरिंग इन द सेम मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी सबका सेम है। तो अब मैं ऐसा कह सकता हूं कि R² प्रोपोर्शनल टू क्या बचेगा? काइनेटिक एनर्जी मास। B सेम है, बट तो बचेगा m/q², ये बचेगा। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि R प्रोटॉन इज टू R ड्यूटेरॉन इज टू R अल्फा इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर। नहीं, अब एक और स्टेप करना पड़ेगा, एक और स्टेप करते हैं। चलो, तो R² प्रोपोर्शनल टू m/q²। तो R प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा भैया? √m/q हो जाएगा। अब करते हैं, रेडियस ऑफ प्रोटॉन, रेडियस ऑफ ड्यूटेरॉन, रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल्स टू द रेशियो m प्रोटॉन अपॉन चार्ज प्रोटॉन, रूट में m ड्यूटेरॉन चार्ज ड्यूटेरॉन, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल चार्ज ऑफ द अल्फा पार्टिकल। तो अब
मैं प्रोटॉन का मास में m लेता हूं, चार्ज q लेता हूं, तो मुझे पता है कि ड्यूटेरॉन का मास मुझे क्या लेना पड़ेगा, ड्यूटेरॉन का मास मुझे क्या लेना पड़ेगा, 2m और चार्ज तो उसका भी q ही है। अब अल्फा पार्टिकल का मास क्या लगेगा, 4, 4m और उसका चार्ज तो 2q है। तो अब रूट एम बाई क्यू, रूट एम बाई क्यू, टू क्यू रूट एम बाई क्यू सब में से कैंसिल हो जाएगा रेशियो के फॉर्म में, तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे √2 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, कोई बताएगा मुझे? कोई बता? 1 1 ही बचेगा, बिकॉज एम बाई क्यू सब में से कैंसिल, √4 का 2 ही होता है। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल का रेडियस सेम होगा, देखो। एंड दूसरी बात ये प्रूव होगी कि जो ड्यूटेरॉन है उसका रेडियस √2 टाइम्स ज्यादा है दोनों से। ड्यूटेरॉन का जो रेडियस है वो ड्यूटेरॉन का जो रेडियस है वो अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन से √2 टाइम्स ज्यादा है। तो मतलब ऑप्शन क्या बचेगा, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल हैविंग अ सेम रेडियस बट अ ड्यूटेरॉन इज हैविंग अ रेडियस एंड बोथ इज लेस देन ड्यूटेरॉन, बोथ विल बी लेस देन ड्यूटेरॉन। ऐसा कोई ऑप्शन है, देखो तो। b क्या बी थोड़ी ना ऐसा है। ऑप्शन ए, proton and alpha particle having a same radius but both are less than deuteron, ए में तो दोनों के ज्यादा बताया हुआ है, ये रॉन्ग है। बी में तो रॉन्ग दिया हुआ है ना, ए ऑप्शन सही है। इज दैट क्लियर? क्या ये बात समझ में आया? बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर मैंने इसको देखा हुआ है, ये क्वेश्चन को। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग। इज इट अंडरस्टूड फ्रेंड्स? यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 22. In the 22nd question, it is mentioned that two concentric rings are kept in the same paper. ऐसा दिया हुआ है कि कॉन्सेंट्रिक रिंग्स है, सेम पेपर में वो है, और दोनों में से करंट जो है ना वो अपोजिट डायरेक्शन में पास हो रहा है। दोनों में से करंट अपोजिट डायरेक्शन में पास हो रहा है। ओके, तो क्वेश्चन ऐसा है कि व्हाट शुड बी द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सेंटर। तो एक में से करंट सपोज के ऐसे फ्लो हो रहा है, तो दूसरे में से उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे मुझे कॉन्सेंट्रिक का मतलब दोनों के सेंटर सेम है। तो अब मैं क्या मुझे करना पड़ेगा, कॉइल 1 का मैग्नेटिक फील्ड है म्यू0 N1I1 अपॉन 2R1। याद है ना आपको कि कोई रिंग के सेंटर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला म्यू0 Ni अपॉन 2R है। तो अगर इसका मैं देख सकता हूँ कि क्रॉस है, देखो, योर फिंगर शुड बी बाउंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, योर थंब इज इंडिकेटिंग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये क्रॉस है। तो दूसरा वाला जो रिंग है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, तो उसमें आपको अगर बाउंड करते हो फिंगर तो ये आउटवर्ड हो जाएगा। तो दूसरा वाला जो है वो म्यू0 N2I2 अपॉन 2R2। मतलब ये बताओ कि अगर मुझे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो मुझे B1 प्लस B2 करना पड़ेगा या B1 माइनस B2 करना पड़ेगा। चलो बताओ, मुझे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, B1 प्लस B2 या B1 माइनस B2? सब्ट्रैक्शन। दोनों मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन में है तो अब मुझे सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो अब ये करो, आप म्यू0 को एज इट इज रखो, बाकी सारे वैल्यूज हमको दिया हुआ है, R1 दिया हुआ है, R2 दिया हुआ है, N1 N2 भी दिया हुआ है। दोनों में N1 N2 20 है, I1 I2 भी दिया हुआ है। तो you just put the values and just find out the answer. 23 is also very important. 23 भी अभी लास्ट JEE के एग्जाम में पूछा गया है। 23 लास्ट JEE के एग्जाम में अभी जस्ट पूछा कि एक वायर है, उसमें से पहले मैंने 1 टन का रिंग बनाया, फिर उसी वायर में केस 2 में उसी वायर में से मैंने 2 टन का रिंग बनाया। तो अगर पहले केस में मैग्नेटिक फील्ड B है सेंटर पे,
तो दूसरे केस में मैग्नेटिक फील्ड बी डैश कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन है। चलो, इन द केस 1 मैग्नेटिक फील्ड कैन बी गिवन बाय म्यू नॉट आई अपॉन 2r। देखो केस 1 में क्या है कि एक ही टन का रिंग है। वैसे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला जो है ना वो म्यू 0 ni अपॉन 2r होता है, म्यू 0 ni, बट n इज इक्वल टू 1। इन द फर्स्ट केस ओनली 1 टन, सो n इज इक्वल टू 1। बट केस 2 में क्या होगा फ्रेंड्स कि अब मैग्नेटिक फील्ड n टाइम्स बढ़ जाएगा, म्यू नॉट ni हो जाएगा, बिकॉज नंबर ऑफ टन्स n टाइम हो गया। और जो रेडियस है वो चेंज हो जाएगा, बिकॉज वायर तो वही का वही है, बट पहले वायर में से 1 टन का अगर सर्कल बनाते हैं तो थोड़ा बड़ा होगा, उसका जो लूप होगा वो बड़ा होगा, रेडियस ज्यादा होगा। बट अगर उसी वायर में से हम 2 टन का लूप बनाएंगे तो ऑब्वियसली रेडियस उसका हाफ हो जाएगा। अगर n टन्स का लूप बनाएंगे तो रेडियस उसका n टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। अगर हम n टन्स का लूप बनाएंगे उसी वायर में से, तो जितना नंबर ऑफ टन्स बढ़ता है उतना रेडियस डिक्रीज होता है, तो नया जो रेडियस है वो n टाइम रिड्यूस हो जाएगा। तो व्हाट शुड बी द न्यू मैग्नेटिक फील्ड? तो अब बी डैश इज इक्वल टू क्या होगा, तो न्यूमरेटर n टाइम बढ़ेगा और जो डिनोमिनेटर है वो n टाइम रिड्यूस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा n स्क्वायर म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अब म्यू नॉट आई अपॉन 2r तो क्या है, ओरिजिनल जो लूप केस 1 का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो। तो फाइनली द कंक्लूजन इज दैट, ये आपको एज ए शॉर्टकट अभी याद रखना है कि अगर कोई वायर में से पहले एक लूप बनाते हो 1 टन का, और फिर उसके बाद आप n नंबर ऑफ टन्स का लूप बनाते हो, तो व्हाट हैपेंड टू द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड? तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड n स्क्वायर टाइम बढ़ जाएगा। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड विल बी इंक्रीज टू n स्क्वायर टाइम। तो क्या आपको ये बात समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। ओके, and last question, last MCQ, 24th MCQ. As shown in figure, 20 ampere, 40 ampere and 60 ampere currents are passing through the very long straight wires P, Q and R respectively in the direction shown in the arrow. In this condition, the direction of the resultant force on Q. देखो यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि ये 3 वायर है, तो उसमें ऐसे करंट 20 एम्पियर, 40 एम्पियर, 60 एम्पियर पास किए हैं। तो क्वेश्चन ऐसा है कि Q का क्या होगा, Q के ऊपर रिजल्टेंट फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा, ऐसा क्वेश्चन है। तो पहले मुझे ये बताओ कि ये जो P वाला है वो Q को क्या करेगा, ये खुद के साइड अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? अट्रैक्ट, बिकॉज सेम डायरेक्शन। तो P वाला है ना Q को खुद के तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब ये R वाला है वो P को, ये मतलब Q को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा? रिपेल। ये R वाला रिपेल करेगा, बिकॉज R में करंट Q से अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो है ना रिपेल करेगा, मतलब वो उसको खुद के तरफ नहीं बट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। मतलब ये दोनों फोर्स देखो आप कौन से डायरेक्शन में लग रहा है, दोनों फोर्स कौन से डायरेक्शन में लग रहा है? लेफ्ट ऑफ Q। लेफ्ट हैंड साइड। तो फाइनली व्हाट शुड बी द आंसर? ए। Q experiences the force towards, in which direction? लेफ्ट। अब सोचो कि अगर ये जो तीसरा वायर है उसका डायरेक्शन भी वही होगा तो क्या होता? चलो ऐसा सोच के बताओ मुझे कि अगर मिडल में रहता, तो देखो ये P क्या करेगा, वो खुद के तरफ अट्रैक्ट करेगा, और ये R वायर क्या करेगा, वो बीच वाले वायर को खुद के तरफ अट्रैक्ट करेगा। मतलब दोनों एक दूसरे को दोनों ये वायर को अट्रैक्ट करेंगे, बट किसका इफेक्ट ज्यादा रहेगा? इफेक्ट किसका ज्यादा रहेगा? 60। तो अब ये रिजल्टेंट फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा? तो फिर राइट साइड लगेगा। इज दैट क्लियर टू यू? अगर में सेम डायरेक्शन में करंट होता तो रिजल्टेंट फोर्स राइट साइड डायरेक्शन में होता। तो फाइनली मैंने ये सारे एमसीक्यू यहाँ पे खत्म किए। ये जो मुझे करवाने थे तो कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो मुझे करवाने थे वो मैंने सारे यहाँ पे किए। अब आपका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जब नेक्स्ट टाइम आते हो तो ये जो सेल्फ लर्निंग वाला जो पार्ट है
वो आपको करके लाना है फ्रेंड्स। तो ये सेल्फ लर्निंग वाला जो पार्ट है उसको आपको सॉल्व करके लाना है। तो ये चैप्टर नंबर 4 सेल्फ लर्निंग कंपल्सरीली आप इसको सॉल्व करके लाओ। मैंने आपको बताया कि एमसीक्यू सॉल्व करने के बहुत ही बेनिफिट्स है, वो आपको मार्क्स देंगे एग्जाम में। तो ये नोट्स मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड किया हुआ है, जस्ट सॉल्व दिस नोट्स आउट। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैं अभी आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म कर रहा हूं। किसी को कुछ पूछना है अभी? सर हाँ बोलो। सर ईएमएफ क्या है? हाँ, ईएमएफ जो है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मतलब बैटरी का जो वोल्टेज होता है ना उसको ईएमएफ बोलते हैं। बैटरी का जो वोल्टेज है उसको ईएमएफ बोलते हैं। ओके, यस सर। तो फ्रेंड्स आज का सेशन मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। सर हाँ बोलो। સર આપણે જે એક્ઝામ જે રોહિતભાઈને સબમિટ કરવાની ને ના રોહિતભાઈને નહીં, પ્રક્ષાલભાઈને। સર એમનો નંબર નથી મારી પાસે, મેં તમને મેં પાસે મોકલી- માંગ્યો તો। हाँ, आई एम सेंडिंग यू। ઓકે સર।